یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 4 اگست 2019 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: محبت۔ سنہری متن: رومیو۔ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ جوابی مطالعہ: یوحنا۔ اے عزیزو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ اے عزیزو، جب خدا نے ہم سے ایسی محبت کی تو ہم پر بھی ایک دوسرے سے محبت رکھنا فرض ہے۔ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو خدا ہم میں رہتا ہے اور اس کی محبت ہمارے دل میں کامل ہو گئی ہے۔ درسی واز بائبل میں سے یرمیہ۔ خداوند قدیم سے مجھ پر ظاہر ہوا اور کہا، میں نے تجھ سے ابدی محبت رکھی، اس لیے میں نے اپنی شفقت تجھ پر بڑھائی۔ زبور۔ اے خدا، تیری شفقت کیا ہی بیش قیمت ہے، بنی آدم تیرے بازوؤں کے سایہ میں پناہ لیتے ہیں۔ سموئیل۔ جب داؤد اس فلسطی کو قتل کر کے پھرا تو ابنر اسے لے کر ساؤل کے پاس آیا۔ تب ساؤل نے اس سے کہا، اے جوان، تو کس کا بیٹا ہے؟ داؤد نے جواب دیا، میں تیرے خادم بیت الحمی یسی کا بیٹا ہوں۔ سموئیل۔ جب وہ ساؤل سے باتیں کر چکا تو یونتن کا دل داؤد کے دل سے ایسا مل گیا کہ یونتن اس سے اپنی جان کے برابر محبت کرنے لگا، اور یونتن اور داؤد نے باہم عہد کیا کیونکہ وہ اس سے اپنی جان کے برابر محبت رکھتا تھا۔ تب یونتن نے وہ قبا جو وہ پہنے ہوئے تھا اتار کر داؤد کو دی، اور اپنی پوشاک بلکہ اپنی تلوار اور اپنی کمان اور اپنا کمر بند تک دے دیا۔ اور ایسا ہوا کہ اسرائیل کے سب شہروں سے عورتیں گاتی اور ناچتی ہوئی دفوں اور خوشیوں کے نعروں کے اور باجوں کے ساتھ ساؤل بادشاہ کے استقبال کو نکلیں، اور وہ عورتیں ناچتی ہوئی آپس میں گاتی جاتی تھیں کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو پر داؤد نے لاکھوں کو مارا۔ اور ساؤل نہایت خفا ہوا کیونکہ وہ بات اسے بری لگی، اور وہ کہنے لگا کہ انہوں نے داؤد کے لیے تو لاکھوں اور میرے لیے فقط ہزاروں ہی ٹھہرائے، سو بادشاہی کے سوا اسے اور کیا ملنا باقی ہے۔ سو اس دن سے آگے کو ساؤل داؤد کو بدگمانی سے دیکھنے لگا۔ سیموئیل۔ اور ساؤل نے اپنے بیٹے یونتن اور اپنے سب خادموں سے کہا کہ داؤد کو مار ڈالو، لیکن ساؤل کا بیٹا یونتن داؤد سے بہت خوش تھا۔ سو یونتن نے داؤد سے کہا، میرا باپ تیرے قتل کی فکر میں ہے، اس لیے تو صبح کو اپنا خیال کر رکھنا اور کسی پوشیدہ جگہ میں چھپے رہنا۔ سموئیل۔ اور داؤد نے بیابان کے قلعوں میں سکونت کی اور دشت زیف کے کوہستانی ملک میں رہا، اور ساؤل ہر روز اس کی تلاش میں رہا، پر خدا نے اس کو اس کے ہاتھ میں حوالہ نہ کیا۔ اور ساؤل کا بیٹا یونتن اٹھ کر داؤد کے پاس بن میں گیا، اور خدا میں اس کا ہاتھ مضبوط کیا۔ اس نے اس سے کہا، تو مت ڈر، کیونکہ تو میرے باپ ساؤل کے ہاتھ میں نہیں پڑے گا،
और तू इसराइल का बादशाह होगा और मैं तुझसे दूसरे दर्जे पर हूँगा। ये मेरे बाप साउल को भी मालूम है। उन दोनों ने खुदावंद के आगे अहदो पैमा किया। मत्ती। और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उसके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। मत्ती। वो फिर उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी जुबान खोलकर यूं उनको तालीम देने लगा। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के आगे जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मींह बरसाता है। क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारा क्या अजर है? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और अगर तुम फक्त अपने भाइयों ही को सलाम करते हो तो क्या ज्यादा करते हो? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। मत्ती। और देखो, दो अंधों ने जो राह के किनारे बैठे थे ये सुनकर कि यीशु जा रहा है चिल्लाकर कहा, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहें, लेकिन वो और भी चिल्लाए कि ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने कहा, ऐ खुदावंद, ये कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु को तरस आया और उसने उनकी आंखों को छुआ और वो फौरन बीना हो गए और उसके पीछे हो लिए। यूहन्ना। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी है वैसे ही मैंने तुमसे भी मोहब्बत रखी। तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। मेरा हुक्म ये है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। रोमियो। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार? मगर इन सब हालतों में मसीह के वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। क्योंकि मुझको यकीन है खुदा की मोहब्बत जो हमारे खुदावंद मसीह यीशु में है उससे ना हमें मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की ना इस्तकबाल की चीजें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। अब मैं मेरी बेकर एडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। इलाही मोहब्बत जिसने जहरीले सांप को बेजरर बनाया, जिसने आदमी को उबलते हुए तेल से, भड़कते हुए तंदूर से, शेर के पंजों से बचाया, वो हर दौर में बीमार को शिफा दे सकती और गुनाह और मौत पर फतमंद हो सकती है। उसने यीशु के इजहारों को बिला सबकत, ताकत और मोहब्बत से सरताज किया। लेकिन वही अक्ल जो मसीह यीशु की भी है साइंस के खत के हमरा होनी चाहिए, ताकि नबियों और रसूलों के पुराने इजहारों को दोहराए और तस्दीक करे। खुदा इलाही माबूदुल तिबियात का असूल है। जैसा कि सिर्फ एक वाहिद खुदा है तो पूरी साइंस का सिर्फ एक ही इलाही असूल है, और इस इलाही असूल के इजहार के लिए भी तयशुदा कवानीन होने चाहिए। साइंस का खत आज कसरत के साथ इंसानियत तक पहुंच रहा है, लेकिन इसकी रूह बहुत छोटे दर्जात में आती है। क्रिश्चियन साइंस का लाजमी हिस्सा दिल और जान मोहब्बत है।
खुदा की बतौर बचाने वाले असूल या इलाही मोहब्बत की बजाय जिस्मानी निजात दहिंदा के तौर पर तशरीह करते हुए हम इस्लाहात की बजाय मुआफ़ी के वसीला निजात को तलाश करना जारी रखते हैं और रूह की बजाय मादे की जानब रुजू करते हुए बीमारी का इलाज करते हैं। जैसा कि क्रिश्चियन साइंस के इल्म के वसीला बशर बुलंद फहम तक पहुँचते हैं, वो मादे की बदौलत नहीं बल्कि असूल यानी खुदा से सीखते हैं कि मसीह यानी सच्चाई को निजात देने वाली और शिफा देने वाली ताकत के तौर पर कैसे जाहिर किया जाए। शिफा और तालीम दोनों में खुदा और इंसान से मोहब्बत सच्ची तरगीब है। मोहब्बत राह को मुतासर करती, रोशन करती, नामजद करती और रहनुमाई करती है। दुरुस्त मकासद ख्यालात को शह देते और कलाम और अमाल को कुव्वत और आज़ादी देते हैं। मोहब्बत सच्चाई की अलतार पर बड़ी राहबा है। फ़ानी अक्ल के पानियों पर चलने और कामल नज़रिया तश्कील देने के लिए सब्र के साथ इलाही मोहब्बत का इंतज़ार करें। अगर बीमारी हकीकी है तो ये लाफानियत से ताल्लुक़ रखती है, अगर सच्ची है तो ये सच्चाई का हिस्सा है। मंशियात के साथ या बगैर क्या आप सच्चाई की हालत या खसूसियत को तबाह करेंगे? लेकिन अगर गुनाह और बीमारी भरम है, इस फ़ानी ख्वाब या भरम से बेदार होना हमें सेहतमंदी, पाकीज़गी और लाफानियत मुहैया करता है। ये बेदारी मसीह की हमेशा आमद है, सच्चाई का पेशगी ज़हूर जो गलती को बाहर निकालता और बीमार को शिफा देता है। ये वो निजात है जो खुदा, इलाही असूल, उस मोहब्बत के वसीला मिलती है जिससे यीशु ने जाहिर किया। वो तबीब जो अपने साथी इंसान के लिए हमदर्दी की कमी रखता है, इंसानी एहसास में नामुकम्मल है। और ये कहने के लिए हमारे पास रसूली फरमान है कि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता, वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। उस रूहानी एहसास के ना होते हुए तबीब इलाही अक्ल पर यकीन की कमी रखता है और उसे लामुतनाही मोहब्बत से शनासाई नहीं है जो अकेला शिफाइया ताकत अता करता है। हमें ख्यालात में कामल नमूने बनाने चाहिए और उन पर लगातार गौर करना चाहिए, वगरना हम उन्हें कभी अजीम और शरीफाना जिंदगियों में नक्श नहीं कर सकते। हमारे अंदर बेगर्जी, अच्छाई, रहम, अदल, सेहत, पाकीज़गी, मोहब्बत, आसमान की बादशाही को सल्तनत करने दें और गुनाह, बीमारी और मौत तलफ होने तक कम होते जाएंगे। अगर हम मसीह यानी सच्चाई की पैरवी करने के ख्वाहां हैं तो ये खुदा के मुकर्रर करदा तरीक़ाकार के मुताबिक होना चाहिए। यीशु ने कहा, जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। वो जो मंबा तक पहुँचे और हर बीमारी का इलाही इलाज पाएगा, उसे किसी और रास्ते से साइंस के पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सारी फितरत इंसान के साथ खुदा की मोहब्बत की तालीम देती है, लेकिन इंसान खुदा से बढ़कर उसे प्यार नहीं कर सकता और रूहानियत की बजाय मादियत से प्यार करते और इस पर भरोसा करते हुए अपने एहसास को रूहानी चीज़ों पर मुरतब नहीं कर सकता। ये मादी फहम के चीज़ों की बुनियाद पर कायम जहालत और झूठा अकीदा है जो रूहानी खूबसूरती और अच्छाई को छुपाता है। इसे समझते हुए पौलुस ने कहा, खुदा की मोहब्बत से हमको ना मौत, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीज़ें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक जुदा कर सकेगी। ये क्रिश्चियन साइंस का अकीदा है कि इलाही मोहब्बत अपने इजहार या मौजू से आरी नहीं हो सकती, कि खुशी गम में तब्दील नहीं हो सकती क्योंकि गमी खुशी की मालिक नहीं है, कि अच्छाई बदी को कभी नहीं पैदा कर सकती, कि मादा कभी अक्ल को पैदा नहीं कर सकता, ना ही जिंदगी कभी मौत का नतीजा हो सकती है। कामल इंसान खुदा यानी अपने कामल असूल के मातहत गुनाह से पाक और अब्दी है। खुदा पर हमारे ईमान की हर आजमाइश हमें मजबूत करती है। मादी हालत का रूह के बायस ज़ेर होना जितना ज़्यादा मुश्किल लगेगा,
उतना ही हमारा ईमान मजबूत तर और हमारी मोहब्बत पाक तरीन होनी चाहिए। पौलुस रसूल कहता है, मोहब्बत में खौफ नहीं होता, बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है। कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं हुआ। यहाँ क्रिश्चियन साइंस की हतमी और इल्हामी इशायत है। मालिक ने कहा, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप यानी हस्ती के इलाही असूल के पास नहीं आता, यानी मसीह, जिंदगी, हक और मोहब्बत के बगैर, क्योंकि मसीह कहता है, राह मैं हूं। इस असली इंसान यानी यीशु की बदौलत तबीब के असबाब को पहले दर्जे से आखिरी तक कर दिया गया था। वो जानता था कि इलाही असूल यानी मोहब्बत उस सब को खल्क करता और उस पर हुक्मरानी करता है जो हकीकी है। जैसे जैसे सच्चाई और मोहब्बत की दौलत वुसअत पाते हैं, इंसान इसी तनासब से रूहानी वजूदियत को समझता है। बशर को खुदा की जानब राग़ब होना चाहिए, तो उनके मकासद और एहसासात रूहानी होंगे। उन्हें हस्ती की तशरीहात को वुसअत के करीब तर लाना चाहिए और लामुतनाही का मुनासिब इदराक पाना चाहिए, ताकि गुनाह और फ़ानियत को ख़त्म किया जा सके। हस्ती का ये साइंसी फ़हम रूह के लिए मादे को तर्क करते हुए किसी वसीला के बगैर अलूहियत में इंसान के सूखेपन और इंसान की शनाख्त की गुमशुदगी की तजवीज़ देता है, लेकिन इंसान पर एक वसी तर इनफरादियत निछावर करता है, यानी अमाल और ख्यालात का एक बड़ा दायरा, वसी मोहब्बत और एक बुलंद और मजीद मुस्तकिल अमन अता करता है। मोहब्बत आज़ादी दिलाने वाली है। अब मैं मेरी बेकर एडी की जानिब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक, ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज ज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है, और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से, हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और माफ़ी से मोहब्बत की शीरी आसाइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशन गोइयों, मुनसफियों, मजम्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के ख़िलाफ़ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बायस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।